राधे राधे ब्यूटीफुल पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कौरवों की सेना तो पर्याप्त है लेकिन पांडवों की सेना अपर्याप्त है, तो ऐसा दुर्योधन ने क्यों कहा। तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका कमेंट सही होगा मैं उसको पिन करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। You must give full support to Grandfather Bhishma, standing at your respective strategic points in the phalanx of the army. महादेव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। दुर्योधना, after praising the powers of Bhishma, further considered that others might think that they had been considered less important, so in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. He emphasized that Bhishma Deva was undoubtedly the greatest hero, but he was an old man. So everyone must especially think of his protection from all sides. He might become engaged in the fight and the army might take advantage of his full engagement on one side. Therefore, it was important that other heroes would not leave their strategic positions and allow the army to break the phalanx. भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। Duryodhana clearly felt that the victory of the Kurus depended on the presence of Bhima Deva. He was confident of the full support of Bhima Deva and Dronacharya in the battle because he well knew that they did not even speak a word when Arjun's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice while she was being forced to strip naked in the presence of all the great generals in the assembly. Although he knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, he hoped that all such affection would now be completely given up by them, as was customary during the gambling performances. दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीमदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म
कृष्णदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण संयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुढ़ क्रीड़ा के अवसर पर किया था। After thus expressing in soliloquy his own estimate of the relative strength and the merit of two forces now arrayed, ready for a total war, the king in Duryodhana rises above his own mental clouds of desperation to issue his imperial orders to his army officers. He advises them that each commandant must keep to his position and fight in a disciplined order, and all of them should spare no pains to see that the revered beast is well protected. आत्मभाषा में जताने के बाद दुर्योधन की ताकत की क्षमता और दोनों सेनाओं की योग्यता का अनुमान कतार में खड़े सेना जो कि पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थे से लगाया जा सकता है। दुर्योधन एक राजा के रूप में था और अपनी मानसिक की निराशा से ऊपर उठकर अपने सेना के अफसरों को अफसरशाही आदेश जारी करने लगा। उसने सलाह दी कि सारे सेना नायक अपनी अपनी जगह पर तैनात रहें और अनुशासनबद्ध व्यवस्था में युद्ध करें। सभी आदरणीय भीष्म की सुरक्षा को लेकर कोई कष्ट ना छोड़ें। Perhaps Duryodhana suspects that the lusty force that he had mobilized is an all ill-assorted heterogeneous army constituted of the various tribal chieftains and the kings of distant lands, and that the strength of such an army could be assured only they hold on to a united strategy in all their various maneuvers. Synchronization of the different operations is the very backbone of an army's success, and in order to bring about this as a true strategist, Duryodhana is instructing his various commanders working at their different wings to entertain and work out the single policy of protecting Bhishma. दुर्योधन को शक था कि उसने जिस कामुक सेना को जुटाया है वह सब असंगठित विषम सेना है जो कि आदिवासी सरदार अलग अलग शहरों के राजाओं से बनी है, और इस तरह की सेना की ताकत का आश्वासन केवल वे ही धारण करते हैं जब वह सभी विभिन्न पैंतरोंबाजी में संयुक्त रणनीति बनाकर चले। सभी परिचालकों या गतिविधियों में एक साथ समन्वय से चलना ही किसी सेना की जीत की रीढ़ की हड्डी है। इसी को बरकरार रखना ही एक सच्चे राजनीतिज्ञ की पहचान है। दुर्योधन अपने अलग अलग खंड के अफसरों को यह आदेश दे रहा था ताकि भीष्म को बचाने के लिए कोई एक नीति काम कर सके।
Again, this declaration clearly shows how far Duryodhana had realized the unquestionable importance of Bhishma for his army's efficiency. Bhishma was considered by Duryodhana as the heart of his army, not only because of the grandsire's powers and wisdom, but also because, as the Kaurva chief realized, the different kings and warriors had joined his side because of their reverence for Bhishma, the most adored and respected warrior of those chivalrous days. फिर से ये घोषणा इस तरफ इशारा कर रही है कि दुर्योधन को अपनी सेना की क्षमता को बरकरार रखने के लिए भीष्म का अप्रश्नित महत्व समझ चुका है। भीष्म पितामह को दुर्योधन अपनी सेना का दिल मानता था, इसलिए नहीं कि उनके पास बुजुर्ग होने के कारण बहुत सारी शक्ति और ज्ञान था, बल्कि कौरवों के मुखिया यानी दुर्योधन को यह बात समझ आ गई थी कि जितने भी राजा और योद्धा नहीं उसकी सेना का चुनाव किया है, वे सिर्फ उनकी भीष्म के प्रति श्रद्धा है। उन वीरतापूर्ण दिनों का सबसे प्रशंसित और सम्मानित योद्धा भीष्म पितामह ही हैं। Bhishma was out of the picture. The so-called allies were sure to lose heart and desert the Kaurva ranks. Hence, Duryodhana's anxiety for the safety of Bhishma and his special instructions that all should, without deserting there, always guard Bhishma. अगर भीष्म सेना से बाहर निकाल दिया जाए तो जितने भी यहाँ सहयोगी कहलाए जा रहे हैं वह अपना दिल छोड़ बैठेंगे और उच्च श्रेणी के सेना के लोग अकेले हो जाएंगे। इस तरह दुर्योधन की चिंता भीष्म की सुरक्षा को लेकर और खास हिदायतें यहाँ पर बिल्कुल जायज़ हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक कमज़ोर और दुर्विचारी व्यक्ति कैसे ताकतवर लोगों को अपनी जीत की सीढ़ी बनाता है।